જમ્મુમાં ફસાયેલા તમામ ગુજરાતીઓ સુરક્ષિત છે। તમામ પ્રવાસીઓને આર્મી કેમ્પ લવાયા છે। પ્રવાસીઓને જમવાની વ્યવસ્થા પણ કરી આપવામાં આવી છે। પ્રવાસીઓની બસને પણ આર્મી કેમ્પમાં લઈ જવાશે। પરિસ્થિતિ સુધર્યા બાદ ત્યાંથી બસ સાથે પ્રવાસીઓને રવાના કરવામાં આવશે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં ફસાયેલા તમામ ગુજરાતીઓ સુરક્ષિત છે। 50 જેટલા લોકો ગઈકાલથી ત્યાં ફસાયેલા હતા। ગાંધીનગરમાં 30 જેટલા લોકો છે જેઓ ત્યાં ફસાયા છે અને પાલનપુરના 20 જેટલા લોકો સામેલ છે। સમગ્ર મામલે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા ગુજરાત પોલીસને જરૂરી પગલાં લેવા સૂચના આપવામાં આવી હતી। ગુજરાત પોલીસને જરૂરી પગલાં લેવા સૂચના અપાયા બાદ ગુજરાત પોલીસે જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસના કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરી અને જરૂરી આદેશ અને સૂચનાઓ આપી હતી। રામબન એસએસપી સાથે સંપર્ક કરી માહિતી મેળવી હતી। તો આ અલગ અલગ 5 તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છે। જ્યારે ગઈકાલથી જે તસવીરો આવી છે જેમાં ગુજરાતીઓ ફસાયા હતા, બસમાં જ તેમણે આખી રાત વિતાવી હતી। ત્યારબાદ જે આર્મી કેમ્પના જવાનો છે તેઓ તેમની સાથે પહોંચ્યા અને જમવાની વ્યવસ્થા કરી આપી। જે ગાડીઓ ફસાયેલી છે ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે ટ્રાફિક ખૂબ જ લાંબો હતો। સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને ગુજરાત સરકાર સતત જમ્મુ કાશ્મીર સરકાર સાથે સંપર્કમાં છે, તેમના વહીવટીતંત્ર સાથે સંપર્કમાં છે અને આપણા યાત્રિકોની સુરક્ષા સતત તેઓ સુરક્ષાની ચિંતા કરી રહ્યા છે। અને આજ સવારે પણ મારી એક પ્રવાસી જોડે વાત થઈ હતી, તેમાં અત્યારે એમનું રેસ્ક્યુનું કામ ચાલી રહ્યું છે તેવા સમાચાર છે। શનિવારની સાંજે મેં 8:30 વાગે શ્રીનગર से कटरा जवाना था। त्या वच्चे वरसाद અને વીજળીને એવું પડવાના કારણે ભેખડો ધસી ગઈ છે। તેના માટે અમે નાઇટ ત્યાં રોકાયા રસ્તા વચ્ચોવચ। ત્યાંથી પછી બીએસએફના આર્મી લોકો આવ્યા, રાતના નાસ્તા બી કરાવડાયા। સવારમાં અમને એ લોકોએ ચા પાણી નાસ્તો કરાવડાય અને તેમના કેમ્પમાં 11 વાગે લાવી અને અહીં બી અમને જમાડ્યા છે। અને અમારી બધાની 55 જણા અમે સેફ છીએ। કોઈ પણ જાતની ચિંતા કરવા જેવું છે ને। અને અમારે જ્યાં જવું હોય, શ્રીનગર જવું હોય ત્યાં મૂકવા આવશે અને કઈ જગ્યાએ જવાનું છે ત્યાં અમને મૂકવા આવવા માટે તૈયાર છે। ગાડીઓ બી તૈયાર કરી છે। માટે આપણા સમાજમાં અથવા આપણા કુટુંબના કોઈ પણ વ્યક્તિ અમારી કોઈ પણ જાતની ચિંતા કરીને અમારી 55 જણા સહી સલામત છીએ। તો જમ્મુના રામબનમાં ફસાયેલા લોકોની મદદે આવી આર્મી। જે લોકો ફસાયેલા હતા તેમની મદદે પહોંચેલા જવાનોએ જમવાની વ્યવસ્થા કરી આપી। અમારી ટીમ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી અને ફસાયેલા લોકોની વ્યવસ્થા અને તેમની જે વ્યથા છે એ પણ જાણી। रामबन विपदा का दूसरा दिन और हम लोग अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं। बता दें कि दूसरा दिन है। लोग जो हैं वो जम्मू से कश्मीर जाने वाले, कश्मीर से जम्मू जाने वाले नेशनल हाईवे पे बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये जो लंगर वाली थाली आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये जो लोग हैं ये पैदल सफर कर रहे थे और कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करके ये कश्मीर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है। और आप यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? जी बिजनौर से आए हैं, यूपी। श्रीनगर जाना है। तो रास्ता बंद हो गया? जी रास्ता बंद है, कल से फंसे हुए हैं हम। अभी काफी दूर से पैदल आ रहे हैं। अभी आगे लगभग बनान तक जाना है। तो आगे जहाँ तक आपको गाड़ियाँ नहीं मिलेगी वहां तक पैदल जाएंगे? जी जी। तो कितने लोग हैं आपके साथ? जी हमें लगभग 9-10 बंदे। 9-10 बंदे। तो छोटे छोटे बच्चे लेकर जा रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चे हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों ने लंगर की सुविधा आपके लिए लगाई है, बहुत अच्छी दी है सुविधा। तो पूरा तो बाजार बंद ही दिखा होगा, कोई दुकानें खुली नहीं? हाँ बाजार अभी बंद ही था, जहाँ से हम पैदल आ रहे हैं। हम फंसे हुए थे रात को। तो क्या रात को मिला कुछ खाने के लिए? रात को भी कुछ नहीं मिला था, तो बिस्कुट विस्कुट थे वही खाए थे हमने। अच्छा जी। चलिए, तो ये बिजनौर यूपी से आए हैं, कश्मीर जाना है, लेकिन यहाँ पर देवदूत कौन बना है? भारतीय सेना के जवान। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर वेज पुलाव इनके लिए बनाया गया है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किसी भी त्रासदी से अगर कोई जो उसकी चपेट में आया है तो भारतीय सेना के जवान जो है वो देवदूत बनकर उनकी रक्षा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो सेवा है वो की जा रही है। आप खाइए, आप खाना खाइए। तो ये वो लोग हैं जो कई घंटों से नेशनल हाईवे पे फंसे हैं। भाई साहब आप भी फंसे हैं, कितनी दुख की बात है, कितना खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, पानी नहीं, खाना कुछ नहीं। और ऐसे में खाना अगर भारतीय सेना ने दिया है तो कितनी बड़ी बात है। हाँ बड़ी अच्छी बात है जी, खा रहे गरीबों क्या करेंगे, खाना खिला रहे हैं। चलो भला होगा। बिल्कुल, देखिए ये भी दुआएं दे रहे हैं और कौन नहीं दुआएं देगा। देखिए जिसका पेट खाली होगा वो दुआएं देगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो लंगर की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप?
हम उत्तराखंड से, रुड़की से। उत्तराखंड से। तो कहाँ फंसे, कहाँ जाना है, कितना लंबा सफर था और कितना दुख आपने देखा है? हमें श्रीनगर जाना था, तो रात को फिर जब बारिश होने लगी तेज और फिर पत्थर आने लगे, तो हम यहीं से गाड़ी हमने टर्न की और फिर वहाँ अंदर यानी कि लोगों ने मदद की माशाल्लाह बहुत, वहाँ पे बहुत मदद की है। हाँ। और अभी चूंकि भारतीय सेना के जवानों ने भी हाँ बहुत इन्होंने मदद की माशाल्लाह यहाँ पे, और करते ही ये इनका काम है विचारों का। देखिए, आप जो भारतीय सेना के जवान हैं वो भारत की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन रक्षा तो भारत के लोगों को ही करनी है। तो आप त्रासदी में भी आज लोगों के साथ खड़े हैं और आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बेहद सुकून आपको मिल रहा होगा इनकी सेवा करने जी जी, ये हमारे को सुंदर मौका मिला है इनकी सेवा करने का, आम जन का। हम आवाम के साथ है, आवाम का जब जब भी हमें मौका मिलता है तो हम इनकी ये ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा जो इनको हम जो भी मेडिसिन दे सकते हैं, खाना प्रोवाइड करा सकते हैं, ये हमारे अधिकारियों के आदेश होते हैं।